Then we'll go to the deeper side of our discussion. And if you have any point, you can interrupt me at any point of time, first to the chat. And if I cannot listen to it, and then you can open your mic and you can let me know. Okay. So I will start the electrochemistry portion. So I start from the electrochemical cell. Let's see. आप लोग को मैं बार बार बोला हूँ कि अपने म्यूट कर लीजिए, बिकॉज सर आप ही म्यूट करिए, ऐसे नहीं होगा, हर क्लास में यही होता है सर। आप ही मेरा म्यूट ना मैंने देखा है सब म्यूट है सर। वो आप ऑन करने का ऑप्शन ही ना दीजिए ना, वरना बच्चे वो नहीं मानते हैं। ओके, जस्ट मेरा म्यूट ऑल। यस, आई हैव डन। और सर चैट भी एवरीवन से हटा दीजिए सर। ऑल पार्टिसिपेंट। Okay, I have done whatever the few settings I want to do. सब खुद को म्यूट कर लो ना, सर से क्या बोल। मेनली तो यही होता है कि सब लोग अपने आप को सब तो समझदारी से करे तो अच्छा है, बिकॉज आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन द बट एनीवे, आप लोग नहीं सुनना चाहते अलग बात है। आप लोग स्क्रीन दिख पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। जी सर। Let me just do one. Yeah. Now can you see the screen? Yes, sir. Okay. Yes, so sir. what we will discuss today is electrochemical cell, and the we generally talks about electrochemical cell in two form. One is galvanic cell. So one is galvanic cell. Galvanic cell, and another is electrolytic cell. So there are two types, I can say, the electrolytic cell. Okay, so there are two type of electrode we will discuss. Yes, this electrolytic cell I will discuss little late, because that application will be coming later. I will first focus on the galvanic cell in the beginning, and that's why I will discuss little more on this and the basic of it. Now basically when we talk about the galvanic cell, it is nothing but it is a device. It is a device that or which convert the chemical energy into an electrical energy or electrical energy. Okay, electrical energy. By the way of spontaneous reaction. Okay, just a definition I am giving. Now we need to discuss about it in the details. So more important point is the spontaneous reactions. I hope you all know what is the meaning of the spontaneous reactions and spontaneous process. So when we discuss about this, there are few things we need to discuss, because the very important terms which I will be using here in the electrochemical cell. One is we generally talks about a reduction. Okay, this is one process of reaction, and another is your oxidation. Very basic one, everybody might be knowing. Okay, now oxidation process or reduction process, one can talk about. Reduction process, nothing but what is the gain of electron, the process of gain of electron, gaining of electron. Reduction oxidation process is nothing but a losing of electrons. It's a process I'm talking about. Now this process
has a very important meaning in electrochemical cell. That is the reduction potential. Reduction potential. Okay. Now, what is the reduction potential? Reduction potential is nothing but the tendency of the species to gain the electron. So it is nothing but the tendency of a chemical species to gain the electrons. Okay. It may be 1, it may be 2, depending on their tendency. Second is the oxidation potential. Oxidation potential. Oxidation potential is, again, you can say this is the tendency of a chemical species to lose the electron. Okay. Now these are the potential which we will be using frequently. Now most of the time there are another term which is very important, is electrochemical series. Electrochemical series. I hope you must be knowing. I will give you this detail in the this thing. Is nothing but is the arrangement of reduction potential or oxidation potential in increasing or decreasing order. Okay. So it's nothing but whatever the values we are getting, reduction potential, oxidation potential, they are arranged in order. Okay. So it is nothing but the arrangement of हेलो एक्सक्यूज मी सर yes beta. सर हिंदी में एलोबरेट कर दीजिएगा प्लीज Okay. मैं थोड़ा मिक्स करूंगा. Is it हाँ सर okay? मिक्स ओके सर Okay. Okay. So arrangement of the reduction potential or oxidation potential ठीक है, in increasing order or decreasing order. ठीक है, decreasing order. I can tell you that there are many of the process in the electrochemical series, they are arranging from the low reduction potential to high reduction potential. There are arrangement from the high reduction potential to low reduction potential. Most of the time they have given and arranged in a reduction potential. But when you see the context in the English authors and the English scientists, they use both reduction and oxidation potential. Okay, so you have the clear idea that electrochemical series, most of the time you will encounter that आपको ऐसा मिलेगा जो series है वो reduction potential की series में arrange किया होगा. That is what we generally talk about, from lower value to higher value, or maybe higher value to lower value, decreasing हो या increasing हो. अलग अलग किताब की अलग अलग है, पर उससे कहीं हमारा concept में फर्क नहीं पड़ेगा. We will have whatever the value we will be using, and we will discuss that. Okay. Only point which I am talking about is whenever you are finding these kind of series, reduction potential और oxidation potential हो, उसमें एक चीज कॉमन होगा. क्या चीज कॉमन होगा? Sometimes somebody may write oxidation potential in the series, somebody write the reduction potential in the series. ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए स्पीशीज आर सेम इन मैग्नीट्यूड
but are different in sign only. मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरी कहने का मतलब ये है कि आप whatever the order they have arranged, रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करें या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अरेंज करें, कोई भी एक स्पेसिस का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है सेम नंबर, बट दोनों का सिर्फ साइन में फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड लिख रहा हूं, लेट मी राइट लाइक दिस। ये साइन जो है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये साइन का क्या मीनिंग है। ये साइन रिडक्शन पोटेंशियल के साइन है, क्योंकि जिंक +2 जिंक 0 में जा रहा है, ये जिंक 0 है, जनरली लिखता नहीं है, जिंक +2 से जिंक 0 में जा रहा है। सपोज इसका हम लिखते हैं -0.7, दोबारा लिखते हैं -0.76 वोल्ट, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। दिस इज सिंपल है माइनस, ओके, ये कोई वो नहीं है। तो इसका हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, मेरी कहने का मतलब ये है, आई कैन राइट अगेन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑल्सो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम ऐसा लिखेंगे, ये 0 से 2 में चला गया, ये लूज हो गया, तो हम इसको लिखेंगे, वैल्यू सेम होगा 0.76 वोल्ट। साइन क्या है, यहाँ नेगेटिव था या पॉजिटिव, ओके, तो दीज आर द वैल्यू। इसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मीनिंग क्या हुआ, दोनों का वैल्यू सेम है बट साइन अलग है, ठीक है। तो कहीं पे भी किताब में ऑक्सीडेशन में अरेंज हो या रिडक्शन में अरेंज हो, एक स्पेसिस का वैल्यू तो मैग्नीट्यूड में सेम होगा बट साइन का अंतर होगा, ठीक है। तो उसी का अरेंजमेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है, बट वैल्यू के हिसाब से आपको सेम नजर आएगा। Is it fine? Reduction will always be in negative sign. क्या कह रहे हैं? Sir, reduction and oxidation आपने बताया ना, तो reduction will always be in negative sign and oxidation will always be नहीं, positive. हर स्पेसिस अलग है। मैं तो एक एग्जांपल दिया हूँ जिंक का, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जिंक का। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है, तो आपका जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस होगा। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ही होगा। फॉर एग्जांपल, लेट मी आल्सो गिव अनदर एग्जांपल। लेट मी टॉक अबाउट कॉपर। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है वोल्ट। नाउ दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, नाउ ये प्लस है। आर गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज मैंने क्या बोला आपको, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन पोटेंशियल, tendency to lose electron is the oxidation potential. So reduction potential of copper is 0.34, तो reduction potential ये प्लस है, but इसका टेंडेंसी है, उसका गेन करने का टेंडेंसी है। जिंक का माइनस है तो उसका गेन करने का टेंडेंसी है, ठीक है। अब नाउ मैं इसका ऑक्सीडेशन लिखूं, कॉपर एंड कॉपर +2, so I will write -0.34. नाउ ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir, clear. ओके, अब नाउ इसमें मैं उसमें बहुत ज्यादा डिपेंड मतलब वी विल डिस्कस इट, इसकी डिपेंड इसका कैसे हमने रीड करना है। आई विल राइट द वैल्यूज और हाउ डू वी रीड इट, हाउ डू वी यूज इट, हम उसमें सारे डिस्कशन करेंगे। ओनली हियर इज I am just telling the electrochemical series में आपको ये डाटा मिलेंगे, और उस डाटा में कभी कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे कैसे यूज करना है we will talk about. Now let me just add few point here. आप यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सपोज मैं रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करूं जिंक और कॉपर का, तो जिंक का
पोटेंशियल जो है रिडक्शन पोटेंशियल -0.4676 है और कॉपर का 0.34 है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिंक और कॉपर का? आप क्या बता सकते हैं? कॉपर का सर। कॉपर का सर Copper का का, absolutely, very good. So you will tell the reduction potential of copper is bigger than the zinc, क्योंकि ये प्लस में है और वो नेगेटिव में है, राइट? तो इसी तरह हमारी अरेंज जब करेंगे तो मैं अरेंज करूं इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे तो हमारा ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आएगा। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करूं तो 0.34 से -0.76 में आएंगे। इसी तरह का अरेंजमेंट होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लियर? नाउ the another term we will be using depending on the reaction is, as you all know, very common one. किसी का एक म्यूट नहीं है, काइंडली चेक योर माइक प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एनोड and cathode, this is another term we are using in the electrochemical cell. Now cathode is a terminal where reduction reaction takes place. So this is the electrode where reduction reaction takes place. Always reduction is occur. ठीक है, जहां रिडक्शन होंगे मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें आप कैथोड को रखोगे। और एनोड में क्या होगा? इट इज अ इलेक्ट्रोड where the oxidation takes place. Oxidation is occur, that is loss of electron is occur. Are you getting my point? So ये टर्मिनल, ये टर्म जो है हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है? अब नाउ लेट मी just go ahead with our discussion for the galvanic cell. Then let me discuss with that. So now let's focus on galvanic cell. Now we use few of important points. I will tell you time to time few more also, ठीक है, जहां यूज होंगे। Now in the galvanic cell, I already have told you, is a device which can convert chemical energy into electrical energy by the way of spontaneous reaction. Now इसमें spontaneous process की definition भी बाद में आएगा। What we generally talks about, generally we can discuss a Denial cell. Denial cell. Now Denial cell is nothing but a cell of copper and zinc. Okay, it's nothing but जिंक कॉपर सेल, इसको हम डेनायल सेल कहते हैं। कल को लोग क्वेश्चन पूछ सकता है डेनायल सेल किसको डिफाइन करते हैं, तो कॉपर एंड जिंक की इलेक्ट्रोड को हम सेल को हम बोलते हैं डेनायल सेल, ठीक है? तो whenever you are connecting zinc and copper electrode, they will make a copper zinc cell and that is known as a Denial cell, ठीक है? इसके हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री क्या है? Whenever they produce by mistake the zinc rod was deep into the copper, so the scientists found the warmness in the copper solutions, so they considered that क्यों warmness हो रहा है, क्यों गर्म हो रहा है, then they thought there are some reaction will be taken place, then they have separated them and make them electrode, then they found that there are some energy produced in the process, there is potential produced in the process, then they started making a cell. तो कैसे उन्होंने सेल बनाया है? Let me just briefly define you. They make two different compartments. One is zinc solutions are there, and zinc rod deep into this. Galvanic Denial cell I am talking about, and you can say it's a galvanic cell also. So this is nothing but a zinc rod, zinc metal, okay, rod, and they are dipping into the solution of zinc sulfate. Now this is zinc sulfate solution, okay?
solution. Then use another electrode site. I will tell you what are the types of electrode, but let me just go by galvanic cell. So again, you are using another electrode. This is the copper electrode, or you can say this is a copper rod. Copper rod. And dipping into the copper, again sulfate. Now they are connected through a voltmeter, or we can say galvanometers. You can say voltmeters here. Then they are connected through a salt bridge. I will also tell you about the salt bridge. Please draw the diagram and let me explain it. Here is a system here. So this is potassium chloride salt bridge. Is known as salt bridge. Okay. Okay. Is it fine? Now once they have connected this cell, they have found some values, some potential here, some energy convert. Now this energy conversion is nothing but what we say chemical process into electrical energy. So now how they have been taken place, that is the one we need to talk about. Now whenever we talk about this electrode is what we generally call as a cathode. If I give the value, you can easily know why we put cathode. This is known as the anode. Conventionally, this value is sign is negative, this sign is positive, right? So one thing you have to talk about in the galvanic cell, the cathode is a positive, then reduction takes place. Reduction. And generally we keep this in the right side. जो भी आप लिखेंगे right side में लिखेंगे. Anode में क्या है? Anode is always negative in the galvanic cell and oxidation reaction takes place. Oxidation reaction takes place. And they always put on the left hand side. Left side. Okay. And negative bhi hoga. So these are the things you have to note down. Of how this reaction takes place, how we can consider, let us talk about an anode, what is going on. Anode mein oxidation hoga. So at anode mein what is happening? The zinc, which is the metal solid, dissociate or ionize into zinc ion. That is aqueous solution, and 2 electron has been lost. Okay, so this is what we talk about oxidation here. Now at the cathode, what is happening? The copper solutions, that is aqueous, get 2 electrons to convert into copper. Just a minute. Okay, copper metals. So now this is reduction. Are you getting my point? Is it fine? Hello? Is it okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. So now, whenever we talk about these particular cell or these reactions, let me talk about what is a reaction. So
You can sum these two together. Suppose this is your one reaction, this is two reaction. They are taking place simultaneously. That means electrons are releasing from the anode side and it will reach to the cathode side. Okay. So what we generally talk about why the negative values come at the anode. इसका reason क्या है? Anode में negative होने का क्या reason है? Anode में negative होने का यही reason है कि anode की जगह में electron release होता है, तो electron ज्यादा हो गया उसके पास, तो इसलिए इसके negative है. कैथोड में पॉजिटिव होने का क्या रीजन है? बिकॉज कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डिमांड है. इलेक्ट्रॉन की डिमांड कब होगा? डिफिशिएंट होंगे. इलेक्ट्रॉन की डिमांड कब होगा? जब डिफिशिएंट होगा. जहां इलेक्ट्रॉन डिमांड होंगे वहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, इसलिए यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिंक हो रहा है. तो यहाँ कंजम्पशन है, डिफिशिएंट है, इसलिए पॉजिटिव है. ठीक है. तो कैथोड में क्यों पॉजिटिव हो रहा है इन द गैल्वेनिक सेल? इसका कारण यही है बिकॉज दे आर डिमांडिंग. एंड दी एनोड में नेगेटिव क्यों है? बिकॉज दे आर रिलीजिंग. ठीक है. अच्छा, रिलीज होने के क्या कारण है वो भी एक अलग थॉट है. ठीक है. दैट बट आई विल टेल यू लेटर. लेट मी टॉक अबाउट नाउ इफ दिस इज द हाफ सेल रिएक्शन. दिस इज आल्सो नोन एज हाफ सेल रिएक्शन. Half cell reaction. ठीक है. Again, this is also known as half cell reaction. ठीक है. So what we can find out the final cell reaction. The cell reaction will be sum of this 1 and 2. That means 1 we can talk about zinc gives zinc plus 2 electrons, and second the copper get 2 electrons to convert into copper solid. Okay. So when you do cancellation of common term क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा. So zinc, copper ion, zinc, आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसका म्यूट नहीं है म्यूट कर लीजिए प्लीज. हेलो Sir, sir, I have some doubts. Sir, Yes. एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वहाँ नेगेटिव कैसे है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन आपका जो मेटल है, मेटल लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा ना. इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस टर्मिनल में ज्यादा होगा मतलब है कि वहां जनरेशन पॉइंट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो सर इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स. यस सर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी कहने का मतलब है कि आपका एनोड में इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है. अच्छा. तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. यहाँ क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है, तो सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं. सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस सर. मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे जो है कौन कौन है आई डू नॉट सर नो. आप मेरी ही म्यूट कर लीजिए, वो नहीं मानेंगे सर. 1 महीना हो गया नहीं मान रहे. ये हर क्लास में होते हैं ऐसा. हर क्लास में सर हर म्यूट कर क्लास में देते ये हैं होता है, सबको, सर. और सारी सर सर म्यूट रखते सर हैं. लास्ट बाद में में म्यूट कर दीजिए जब ना डाउट सर, होता क्लास है तब खत्म तब होने के ओपन बाद. करते हैं. तो आप भी जब क्लास के बाद में डाउट हो तो तब ओपन कर देना सर. अभी सबको म्यूट कर दो. हाँ सर, लास्ट 10 मिनट्स में डाउट आप ले लीजिएगा. ओके. अभी सबको म्यूट और सब चैट भी पर्सनल कर दो सर. सर आप चैट देखते रहिएगा, डाउट होगा तो ओके. पर्सनल चैट कर दीजिए. हेलो सर.
यस यस, आप बताइए। Now can you see the screen? Yes. जी सर। Yes, sir. हेलो सर। Yes, बताइए बेटा। सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपने बताया कि दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। सर उनका सिग्निफिकेंस मतलब फिगर्स क्या है? व्हाई वी बी टेकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? यस, सिग्निफिकेंस है कि उसकी पोटेंशियल कितना है, नहीं है। अभी बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाना, I don't know, but let me tell you there are a significance of the value. The value आ रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2 मिनट के लिए। अभी पहले तो ये सेल रिएक्शन जो आ रहा है समझ में आ गया? Yes. हेलो Now, सर। Yes, sir. yes, हाँ सर, सर ये सेल कह रिएक्शन समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कब मतलब नेगेटिव साइन कोई शो करेगा और कब पॉजिटिव। मतलब हाँ। नेगेटिव सर। साइन मीन क्या कर रहा है? yes, yes, हेलो या सर। बता रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ। हाँ सर, ये बोल रहा हूँ मैं, जो हम्म, एनोड है यहाँ पे जिंक है और कैथोड पर कॉपर की रोड है, तो जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो फिर हम्म। इनकी रोड पे कोई साइज पे इफेक्ट पड़ेगा कि ये कॉपर की हैवी हो जाए, ऐसा कुछ? मतलब साइज इसमें जो है हाँ, रोड मतलब की हैवी। साइज में इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली। वो मैं आपको सारे बता रहा हूँ। व्हाट इज द, पहले तो समझो ना ये क्या लिख रहा है। ये देखो, ये नहीं, ये जब तक नहीं समझेगा नहीं समझ में आएगा। ठीक है नाउ सर। एनीवे, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, मैं उसका वन बाय वन दे रहा हूँ। नाउ द नंबर 1 पॉइंट इज दीज रिएक्शंस आर टेकन प्लेस। एक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक टर्मिनल में और कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। दिस व्हाट यू अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट, यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी फाइंड आउट द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन ये हो गया। सेल रिएक्शन में आप जिंक is losing electrons and zinc convert into zinc ion, and copper ion is getting electrons and copper is converting into copper solid. Now this process is a spontaneous process I am talking about. A spontaneous reaction is this. Now this spontaneous process means what? इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? इस प्रोसेस के अंदर जिंक डिसॉल्व कर रहा है, जिंक आयन फॉर्म बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर यहाँ पे आपका जिंक रोड जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, बिकॉज दे विल बी कन्वर्टिंग इनटू द आयंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिंक की जो रोड है उसकी साइज जो है धीरे धीरे कम हो जाएंगे, बिकॉज दे आर dissolving their own metals and converting into ions. ठीक है? So therefore the zinc rod will be depleting or they are dissolving, छोटा होते जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कॉपर में क्या हो रहा है? कॉपर पॉजिटिव नीचे सॉल्यूशन में था, वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर का थिकनेस बढ़ते जाएगा, Clear? Are you getting my point? Because copper are Yes, sir. depositing. So you can write here is the copper are depositing, copper metal solid is deposited, okay, and the zinc metal is dissolved, ठीक है। इसका कम होते जाएंगे और इधर जो है कॉपर का डिपॉजिट होता जाएगा, तो कॉपर के साइज बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये आपका अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा है, शायद आरिफ खान था क्या, तो उसको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डू वी नो द वैल्यू? कि वैल्यू का पॉजिटिव कभी हो रहा है, नेगेटिव कभी हो रहा है, ठीक है। तो हाउ डू वी नो द वैल्यू? ठीक है, तो वैल्यू इज नॉट you have to determine every value at a point of time. These values are given, these values are known, and they have studied that. So therefore when we talk about zinc का reduction potential जो है, as I already have given you, is -0.76 volt है। ये नॉन वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू ये डिटरमाइन किया हुआ है
तो इस वैल्यू को हमने इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है, इंटरप्रिटेट करना है। नाउ ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो निकालने की भी अलग मेथड है, वो मेथड में पढ़ाऊंगा बाद में। अब नाउ दिस वैल्यू इज देयर, इस वैल्यू को हम इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे। और इधर का वैल्यू क्या है, इधर का वैल्यू है कॉपर का। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है 0.34। इसका मतलब रिडक्शन जिसका ज्यादा है वो रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक इज कॉपर इज हैविंग अ पोटेंशियल और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। समझ रहे हो ना। सपोज पैसा वाला पैसा देगा या पैसा लेगा, जनरली द पर्सन हु हैव मनी विल ऑलवेज ट्राई टू गिव द मनी, है ना। तो इसी टाइप में हम इस टेंडेंसी को देखेंगे। कॉपर के पास रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब उसका गेन करने की पावर ज्यादा है, तो इसलिए वो गेन करने की कोशिश करेगा। और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की कंपैरिजन में कम है, क्योंकि माइनस में है, इसलिए वो लूज करेंगे। लूज करने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो अपना लूज करेगा। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर क्यों जिंक लूज कर रहा है, कॉपर क्यों गेन हो रहा है, कारण इसलिए है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम है कॉपर से। क्लियर? Yes, sir. Is it clear ki not? Yes. Yes, sir. Right. Yes, So now these values we need to interpret it. अब इसका इस पर्टिकुलर स्पेसीज का हम सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, that I will tell you later. Now let me talk about this point here. इसमें दोनों क्यों, हमने क्यों कॉपर को लैब में क्यों रखा, हमने जिंक को सिर्फ एनोड में क्यों रखा, जिंक को हम कैथोड में क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। इसका कारण यही है, इस वैल्यू जो है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इज smaller or lesser than the copper, so therefore they will like to do oxidation in comparison to copper. Therefore zinc is more preferably put on the left hand side at the anode side to do oxidation, and copper is more of the reduction potential, so therefore they will putting on the right hand side where reduction can be occurs. हमने गलती से रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, तो नॉन एक्सपोंटेनियस प्रोसेस होंगे प्रोसेस, बट वो नॉन एक्सपोंटेनियस प्रोसेस होंगे, ठीक है। वो भी हम आपको आगे जाके पढ़ाएंगे जब सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो, ठीक है। अब नाउ कमिंग्स टू ये जो सेल है, मैंने जिंक जो लिया है, जिंक का इलेक्ट्रोड का सिस्टम कैसे लेंगे हम, और कॉपर का कैसे लेंगे, देयर इज अनदर पॉइंट, ठीक है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हमने अभी इस पर्टिकुलर सेल में देखा कि ये सॉल्वेज का क्या रोल है। ये यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक का इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेफ्ट से जा रहा है राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ जा रहा है। जिंक इज अ सोर्स, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ। राइट में क्या होगा, लाइट में कंज्यूम। अब ये सॉल्वेज का क्या रोल है, सॉल्वेज का क्या रोल है, To maintain Can you tell me electroneutrality. solvents का क्या रोल? Sir, Yes. electroneutrality maintain करता है. हाँ, और completes the cell Sir, circuit. इंटरनल रेजिस्टेंस कंप्लीट करता है, इंटरनल Okay. सर्किट। ठीक है, इंटरनल सर्किट, यस एब्सोल्युटली ट्रू। इसमें जो है हमको दो चीजें देखना है, वन इज द चार्ज इम्बैलेंस, आपको देखना है चार्ज इम्बैलेंस। नाउ चार्ज इम्बैलेंस occurs ड्यूरिंग द प्रोसेस, या इसी प्रोसेस में क्या होगा, चार्ज इम्बैलेंस occurs ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसी प्रोसेस में। सेकेंड इज सर्किट। सर्किट में क्या है, कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब लेट अस सी, यहाँ पे
चार्ज इम्बैलेंस कैसे होगा? चार्ज इम्बैलेंस कैसे हो रहा है? कैन यू टेल मी समबडी? चार्ज इम्बैलेंस कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है? व्हाट इज द चार्ज इम्बैलेंस? कैन समबडी टेल मी? बिकॉज क्योंकि सर ये जो सॉल्यूशन और रोड है ना वो एक ही है, मतलब सर एक तरफ जिंक पॉजिटिव चार्ज जिंक की Sir, रोड है zinc- और उसका सॉल्यूशन भी वेरी जिंक गुड, से बना हुआ। दैट इज व्हाट सर वी नीड टू जिंक वाले रिएक्शन हाफ सेल में जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा एट आफ्टर सम टाइम, राइट क्योंकि राइट। जिंक आयंस चार्ज बनेंगे बैलेंस का मतलब ये है, यस एब्सोल्युटली ट्रू, आपने जो बताया मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जिंक आयन जो है वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट सल्फेट आयन क्या हो रहा है? इज कांस्टेंट। मैं लेफ्ट साइड में बता रहा हूं, ये आपका एनोड की साइड में कह रहा हूं, एनोड की साइड में बता रहा हूं। एनोड साइड में क्या हो रहा है कि जिंक इज इंक्रीजिंग, जिंक आयन इज इंक्रीजिंग बिकॉज जिंक इज ऑक्सीडाइजिंग, और सल्फेट आयन क्या हो रहा है? कांस्टेंट है। भाई सल्फेट तो एक ही बार डाला है ना, राइट। सेकेंड copper plus 2 is decreasing, but sulfate is constant. समझ में आ गया? ये किस साइड में हो रहा है? कैथोड की साइड में हो रहा है। नाउ ये चार्ज इनबैलेंस को हमने मेंटेन करना है, ठीक है। whenever you are considering the electron is flowing from left to right, ठीक है, एक तो कनेक्टिविटी चाहिए, दोनों पूरा सर्किट में हो, तो सर्किट जब कंप्लीट होगा तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? सॉल्व ब्रिज चाहिए, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द सॉल्व ब्रिज? द रोल ऑफ द सॉल्व ब्रिज इज क्या होना चाहिए? What is the role of the salt bridge? Can somebody tell me? Role of the salt bridge is इलेक्ट्रोलाइट will release मेंटेन the करने के लिए। electrolyte. charge balancing. Number one is imbalance को खत्म करना है। So charges balance by providing the needed ions. जहां जहां जरूरत है वहां देंगे needed ions in the respective electrolytic solution. ठीक है। That means यहां कैटायन की जरूरत है, मैं आपको दोबारा यहां पर बता रहा हूं, यहां आपको जिंक का जरूरत है, कैटायन का जरूरत है, तो ये कैटायन देगा, ठीक है। यहाँ आपका पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ आपका एनायन की जरूरत है तो एनायन देंगे। Are you getting my point? Sir, Suppose but zinc are in plus Sir, 2 charge and cation में तो sir- potassium are in plus 1 charge, no? Then also it will balance. नहीं, क्या आप जो है, मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे किसकी जरूरत है? यहाँ पे जरूरत है नेगेटिव आयन का, लेफ्ट हैंड साइड में, तो नेगेटिव आयंस है तो क्लोराइड जाएगा, ठीक है। Yes. पॉजिटिव आयन जहां जरूरत है, पॉजिटिव आयन जहां जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir, potassium are in plus 1 positive charge, but this zinc and sulfate are plus 2 or There plus is no minus problem. 2. There is no problem. Whenever there is a difference in their potential, the charge are different. There is no problem. Whenever you are talking about the providing of the charge deficient, you can provide like यहाँ पे आपका ज्यादा एक्सेस क्या है? जहां आपका एक्सेस हो जाएगा जिंक आयन की एक्सेस में है, तो जिंक आयन की एक्सेस में है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? क्लोराइड चाहिए। तो क्लोराइड विल come to balance this,
excess of positive charge. Then where this portion, इस portion में copper consume हो रहा है, तो copper का deficiency है, इसका मतलब cation का deficiency है, so potassium will come down and deficient this particular cation deficiency. Clear? So the cation deficiency यहाँ हो रहा है, whatever the deficient, whatever the valency, valency 1 हो या valency 2 हो, doesn't matter. ठीक है? Because वो valency जब charge बनेंगे, तो either they will form potassium sulfate, there is no problem. If you are saying zinc chloride, there is no problem. Are you getting my point? Whenever there is a deficiency, they will make a deficiency completed and make a system like this. ठीक है? तो चार्ज बैलेंस का मतलब है कि आप एक पहले एक 1 इलेक्ट्रॉन वो था बैलेंसी था और नीचे जो है 2 है तो बैलेंस नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. They will have a balancing and they will make them complete their deficiency of charge. Clear? Is it clear or not? Yes सर मतलब क्लोराइड आयन Yes, sir. जिंक के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 फॉर्म करेगा. Yes, definitely. और yes, definitely. Deficiency, जहां deficiency होंगे वहां deficiency complete करेंगे. Hello, तभी तो sir. solvents का रोल है. Hello, sir. Yes, yes. Sir, I didn't understand ki why chloride ions are moving towards zinc sulfate solutions. Because your zinc is producing when the process is occurs. So zinc is in the excess in the terminal, anode terminal. So zinc will be excess. So there is a charge imbalance is there. So how you have to compensate with that? You have to provide the anions into the terminal of anode so that these deficiency, this excess of zinc can be balanced. Clear? Yes, Yes, sir. sir. And similarly on the right hand side where the copper is decreasing, so excess is your sulfate. Sulfate excess should be balanced by providing the cation, that is potassium ion, come down to the system, and that's how this current flows. This how this current flow, completion of the charges, because this whenever there is a movement of the positive cations and anion, only then they will be allowed to flow. Otherwise, they cannot allow to flow. This cannot, like zinc cannot flow inside from here to here, and it will come to here. See, sometimes many of the teachers have told you that this zinc will pass through this. How can they will pass through this? They cannot pass through this. Are you getting my point? Some of the authors will try to explain it. The zinc will come inside this. How can they will come inside this? Are you getting my point? They will not come inside it. These are the cation and anion present in the system. They will balance it. So that's why these role of the potassium chloride is very, very important. Why we select the potassium chloride? Because their mobilities are same. So in the solvents we use those kind of electrolyte which can move simultaneously in the different direction. Are you getting my point? Yes. बट एनोड की साइड पे तो सल्फेट भी प्रेजेंट होगा ना? एनोड की साइड में बेटा सल्फेट जो है वो तो आपने एक बार बनाया था, व्हाटएवर नॉर्मेलिटी वो आपकी कांस्टेंट है, बट जिंक आयंस आर डिसॉल्विंग, जिंक मेटल्स आर डिसॉल्विंग, तो मोर और मोर जिंक विल बी फॉर्म. ओके सर. So therefore there is a excess in कैथोड में कॉपर आयन का डिक्रीज हो रहा है सर, उसको बैलेंस कौन करेगा? कौन सर? कैथोड में कॉपर आयन डिक्रीज हो रहा है तो उसको बैलेंस कौन करेगा सर? तो बैलेंस कैटायन करेगा ना, पोटेशियम. पोटेशियम करेंगे सर. पोटेशियम बैलेंस कर सकता है कॉपर को? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते सर? वो तो उसकी कॉपर प्लस और बढ़ाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज अगर हम के पॉजिटिव देंगे. लेट मी जस्ट एक मिनट आप लोग होल्ड करिए. मैं ना मेरे पास एक डायग्राम है, लेट मी ट्राई टू शो इट इफ इज पॉसिबल. एक मिनट में चेक करता हूँ मेरे पास होगा नहीं होगा. एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक इट.
फिर पूछ लेना। आपको मैं ग्राफिकली दिखाता हूँ। वेयर इज माय नोट्स? जस्ट 2 मिनट्स, लेट मी। मेरा नोट्स मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आप समझ में आएगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। एक मिनट में इसको लार्ज कैसे करूं? नो सर, स्क्रीन ही दिख रही नहीं है। सर, अभी तो कुछ नहीं ये दिख दिख रहा पा है, रहे वही हैं? सारी चीजें। ये दिख पा नो रहे हैं? सर, नो सर, कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। नो सर। कोई बात नहीं बेटा, एक मिनट में शेयर करता हूँ स्क्रीन। न्यू शेयर, यस। आप लोग इसको देखें, आ रहा है? यस सर, यस यस सर। सर। यस सर, You can यस सर, see, यस सर। एक मैं आपको एक गल्वेनिक सेल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? इस पे देखो, यहाँ आपका जिंक है। जिंक जो है, देखो ये कॉपर नीचे आ रहा है। इज इट यस सर, फाइन? यस सर। और जिंक कहाँ जा रहा है? सोडियम कहाँ जा रहा है? सोडियम इधर जा रहा है, ठीक है? सो यू कैन सी, यहाँ आपका कॉपर क्या है, देखो थिकनेस हो रहा है कॉपर और जिंक क्या है? जिंक खत्म हो गया, देखो। क्लियर? कैन यू सी? यस सर। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहा है? देखो एनोड से फ्लो हो रहा है, यस सर। ठीक है? वोल्ट मीटर में इतना वैल्यू दिखा रखा है, वो भी हम कैलकुलेट करके निकाल सकता है, व्हाट एवर वैल्यू, ठीक है? तो दिस हाउ यू कैन डू। सो ये जो सॉल्वेज का रोल जो है, ये चार्ज बैलेंस करना, ये कैटायन एनायन आके करेंगे। ये नहीं है कि नीचे का सॉल्यूशन अंदर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। So this circuit completion is only done through this by providing charge balance। जहां जरूरत है वहां देंगे। यहाँ नेगेटिव का जरूरत है, यहाँ देखो, यहाँ जिंक नेगेटिव लिखा हुआ, वो गलती से लिख दिया है, जिंक पॉजिटिव है। जिंक पॉजिटिव में है तो नेगेटिव यहाँ से नीचे, ऊपर से नीचे आएगा। और यहाँ आपका कॉपर डिपॉजिट हो गया, इसका मतलब आपका नाइट्रेट जो है वो एक्सेस हो गया, तो फिर आपका सोडियम नीचे आएगा। देखो सोडियम यहाँ 2 कर दिया, 2 क्यों किया? क्यों किया? ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 की जरूरत है। यहाँ जिंक का 2 क्यों किया क्लोराइड का? क्योंकि यहाँ 2 की जरूरत है। तो दे आर बैलेंसिंग द व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट। इज इट ओके? यस सर। यस सर। Okay. Yes, sir. So now I am Yes, coming sir. back to my original slide. That is this. Okay. So this is what I am talking about. हेलो सर। So do we have to use salt bridge each time we use the electrolyte? Salt bridge. It depends on the system to system. Yes, in the most of the time we will use salt bridge. There are concentration cells. I'm asking, do we have to change it because the cations and anions are getting used? हाँ, हम अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे तो अलग अलग के लिए हमको अलग अलग यूज करना पड़ेगा, ठीक है? हेलो सर। हाँ, सोल्वेज खराब भी होता है, ऐसा नहीं कि सोल्वेज नहीं खराब होगा। सोल्वेज में आपकी इलेक्ट्रोलाइट सारे यूज हो गया, देन यू हैव टू रिचार्ज इट एंड यू हैव टू चेंज इट। हाँ, यस। हाँ सर, ये बोल रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड तो फिर यहाँ पे K2SO4 भी बनेगा सर? बेटा क्या है? जैसे K+ है तो वो ना राइट हैंड साइड वो हाँ, इम्बैलेंस, तो चार्ज को बैलेंस कर रहा है इधर, तो K2SO4 भी बनेगा क्या यहाँ पे? SO4-2 की रिएक्शन होके कुछ K+ से? हाँ, मतलब आपका सिस्टम के अंदर रहेंगे, बट
हमारी तो क्या है, हमारे तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एज लॉन्ग एज कॉपर है और यहाँ जिंक है, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक है, तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। और एनी डिस्टर्बेंस इन द सॉल्वेज कभी खराब हो गया, देन आपकी सिस्टम वर्क नहीं करेगा, फिर आप इसको चेंज कर दो। जहां जब तक आपका सेल चल रहा है, सॉल्वेज ठीक से दे रहा है, तब तक आप ये चला सकते हैं, और जब तक कॉपर है, जब तक जिंक है, आप इसको चला सकते हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम है आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना फॉर दिस एक्सपोनेंशियल रिएक्शन, ठीक है। तो इसके Okay, अंदर sir. सॉल्यूशन के अंदर जिंक क्लोराइड बन रहे हैं या पोटेशियम सल्फेट बन रहे हैं। इट हैज बीन हैपनिंग इन द सिस्टम बिकॉज देयर इज अ चार्ज बैलेंसिंग इज देयर, so they will be continue to take place. Okay, sir. Okay. Yes. And somebody have raised the hand. Let me know if you have any queries. Somebody have raised his hand. सर Who's जैसे that? उस जो आपने डायग्राम दिखाया था उसमें हाँ, जो हाँ। नाइट्रेट है वो मूव कर रहा था कैथोड वाली साइड से एनोड की तरफ और अगेन वो जिंक के साथ कंबाइन कर रहा था, तो इसमें कौन? भी ऐसा होता है कि सल्फेट है वो मूव करके इधर फिर से बेटा वो ZnSO4 कभी भी नहीं मूव करेगा, कभी भी नहीं। सॉल्यूशन मूव मतलब देखो, मूव मतलब क्या होगा, जब आपके ज्वाइनिंग एरिया में तो दोनों मिक्स करेंगे ना, दोनों कहीं ना कहीं अटैच होंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो आपका जिंक जो है लेफ्ट से चला जाएगा राइट में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिंक नहीं सर, सिर्फ सल्फेट आयंस की बात कर रही हूँ मैं। बेटा सल्फेट भी नहीं जा सकता है। आप मान लो ये इसको जाना है तो मैं जिंक क्लोराइड क्यों यूज करता, सॉरी कॉपर पोटेशियम क्लोराइड हम क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी सर, सर फिर तो उनका मोबिलिटी भी लगेगा ना, साइज ज्यादा हो जाएगा। सर हाँ। साल्ट भी यूज करेगा। ये क्या कह रहे हैं, ये कैन यू रिपीट इट। सो आई टोल्ड कि K प्लस और Cl माइनस का साइज और सल्फेट का साइज ऐसा कोई होगा क्या, मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगा K हेलो सर। नहीं दोनों का दोनों को हेलो। मोबिलिटी सेम है, वो आपको पढ़ाऊंगा, नहीं आपको सर, पढ़ाऊंगा। ट्रांसपोर्ट सल्फेट नंबर का कॉन्सेप्ट है, पोटेशियम क्लोराइड क्यों यूज करते हैं उसकी भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपको हेलो, सर। बता रहा हूँ, कुछ मैं बताऊंगा। सर मूवमेंट सर, सिर्फ सर। साल्ट के आयंस की ही होगी। मूवमेंट दोनों की तरफ से होंगे, मूवमेंट जो सर। है। हाँ सर ये डाउट क्लास लास्ट में ले लीजिए ना सर, क्योंकि अभी क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगा ऐसे करने से तो। यस सर। यस सर। ऐसा डाउट कुछ नहीं बाद में है। भेज। देखो अभी आज फास्ट क्लास है, मैंने आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाया है, बेसिक में कोई डाउट हो तो आज फास्ट क्लास है, आप लोग वो लिबर्टी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई ऑल्सो वांटेड टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्लियर नॉलेज, बिकॉज आप लोग शायद अभी नेट एग्जाम के लिए आए हैं, तो Yes, sir. आपके पास कुछ बेसिक होंगे, पर कुछ बेसिक जो मैं पढ़ाऊंगा हो सकता है वो बेसिक जो है आपने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि कभी कभार मिसकंसेप्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो इसलिए मैंने आपको लिबर्टी दिया है कि आप आज क्लास आगे जाने का ज्यादा मत सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे जब करेंगे एक बार आपको एक फ्लो में आ गया, समझ में आ गया चीजें, तो आप जल्दी जा पाओगे। मगर अभी कंफ्यूजन है फिर आगे नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आज फास्ट क्लास है, यू कैन टेक दैट लिबर्टी, यू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू ट्राइंग टू नो, बट एक फालतू का क्वेश्चन मत पूछना, जो क्वेश्चन जेन्युइन है वो पूछो, और मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जी, शुरू सर। में आपको समझना चाहिए, नहीं तो फिर आप आगे जाके प्रॉब्लम करेंगे, फिर आप बार बार मेरे से पूछोगे कि सर ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। बहुत मिसकन्फ्यूजन हो जाता है, बीच बीच में लोग पूछा करते हैं, एक बार क्लियर हो जाए तो फिर। हाँ तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक करके बताइए कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, आई एम टेलिंग यू अगेन, एक तो सबसे बड़ा डायनाल सेल और गैल्वेनिक सेल का फोकस है रिएक्शन करना। रिएक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल रिएक्शन होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल रिएक्शन कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, विदाउट एनी फोर्स, अपने आप प्रोसेस होना। अपने आप प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए अपने आप कैसे होगा, अपने आप कैसे करेंगे, जैसे जिंक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो
तो अपने आप लूज होने का टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज होके इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉपर की तरफ, दैट इज कैथोड की तरफ, जहां गेन होगा। तो कॉपर की तरफ से, यहाँ जिंक की तरफ से हम कॉपर की तरफ गया तो लेफ्ट से राइट में गया। नाउ एनोड में नेगेटिव क्यों है? एनोड में नेगेटिव इसलिए है कि जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो इसको कहते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ जनरेट हो रहा है, इसलिए इस टर्मिनल को हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। और जिंक जो है, जिंक डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए जिंक जो है डिप्लीट करेगा, जिंक का जो रोड है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ राइट हैंड साइड में रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की ज्यादा है, तो यहाँ गेन करने की ज्यादा है, तो यहाँ डिफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिमांड है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आके डिपॉजिट करेंगे। इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेंगे, तो यहाँ पे कैथोड हो गया। पॉजिटिव होने का यही कारण है क्योंकि पॉजिटिव इंडिकेट दैट यहाँ जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ डिमांड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारा आ रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया। और रिएक्शन कौन सा हुआ? रिडक्शन हुआ। इस प्रोसेस में दोनों एक हाफ सेल की तरह डेवलप होता है। हाफ सेल में आपका रिएक्शन एक लूज हो रहा है, एक गेन हो रहा है, दोनों कंबाइन करके हमारा एक सेल रिएक्शन होता है। सेल रिएक्शन जो है वो ये है, मैंने कहा यहाँ कॉपर जिंक रिड्यूस कॉपर एंड कॉपर कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल। सो कॉपर जो है वो डिपॉजिट करते जाएंगे, इस प्रोसेस में जिंक रिड्यूस ऑक्सीडाइज करते जाएगा। तो ये जो प्रोसेस, इसको हम एक्सपोनेंस मानते हैं, और इस एक्सपोनेंस की वजह से इसका एक एनर्जी प्रोड्यूस होगा। दैट एनर्जी इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कन्वर्जन फ्रॉम केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इस वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैं कह रहा हूं, उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि जिंक यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो जिंक का एक्सेस जो है लेफ्ट में होंगे, और राइट में कॉपर आयन जो है वो डिपॉजिट कर रहा है, तो कॉपर की यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, कॉपर ये डिक्रीज होगा। इस कंडीशन में, इस प्रोसेस में चार्ज इम्बैलेंस होता है। चार्ज इम्बैलेंस कहाँ हुआ? आपका जिंक जो है इंक्रीज हो रहा है, जिंक आयन, और सल्फेट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और कॉपर जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है, सल्फेट जो है फिर कांस्टेंट है। अब इस चार्ज इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक सॉल्ट ब्रिज पड़ा हुआ है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या क्या है? सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक होता है अगर, एक ये सेलुलोस है, एक सेलुलोस है, अगर प्लस इलेक्ट्रोलाइट होता है, पोटेशियम क्लोराइड जैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है। दिस इलेक्ट्रोलाइट जनरली वी यूज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट भी हम यूज कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं। नाउ ये कैसे सिलेक्शन होता है? ये सिलेक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन शुड बी इक्वल टू द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ये आपको पढ़ाए जाएंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। नाउ ये इसलिए यूज होता है, कभी भी दोनों बहुत अलग अलग डायरेक्शन में कहीं भी सेपरेट ना हो, सो दैट जैसे ही चार्ज सेपरेशन होगा लिक्विड जंक्शन होने की चांसेस होता है, इसलिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है, सो दैट दिस कैनॉट हैपन। सो यू आर यूजिंग potassium chloride. Now such potassium chloride can help balancing the imbalance charges generated during the process of oxidation and reduction. So मैंने क्या बोला? मैंने कहा सॉल्ट ब्रिज के रोल कहाँ पे आता है कि चार्ज इम्बैलेंस जो हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए आप जहां आपका नीडेड आयन है, उस नीडेड आयन को इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन में देना, ठीक है। तो जहां नेगेटिव के चार्जेस की जरूरत है तो नेगेटिव वहां से देंगे, यहाँ पॉजिटिव की
जरूरत है वो पॉजिटिव के आयंस देंगे, ठीक है। सो दैट रोल इज प्लेड बाय दी salt bridge. Now second point is to complete the circuit. तो दूसरा जो है to complete the circuit, ठीक है। जहाँ करेंट फ्लो होने की चांसेस है वहां आपका सर्किट को पूरा कंप्लीट कराता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, बिसाइड दे आर ट्रांसफरिंग द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड आयन, यहाँ पे आपका पूरा दोनों का कनेक्शन कंप्लीट करा रहा है, दोनों कंप्लीट करा रहा है। सो दैट इज व्हाट द रोल इज। द सॉल्ट ब्रिज का रोल जो है वो दो मेजर पॉइंट है, वो मेजर पॉइंट आपका चार्ज बैलेंस करना, दूसरा कंप्लीशन ऑफ द सर्किट। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसमें हम कंप्लीशन ऑफ सर्किट में क्या कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ सर्किट में क्या होता है, बाय अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ आयंस, बाय अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस थ्रू इट, ठीक है, थ्रू इट, ठीक है, द अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंक जो है लेफ्ट से आके अब पूरा पास करके जो है उधर जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा पास करके जो है कॉपर के टर्मिनल में जाएगा, और यहाँ सल्फेट जो है उधर ट्रांसफर, ठीक है। दे आर कनेक्टिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो कैटायन एनायन प्रेजेंट है उसके थ्रू इसकी मूवमेंट होता है, समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है। इन द एक्चुअल पोजीशन, आप लिटरली कॉन्सेप्ट में, सिंपल कॉन्सेप्ट में आप कह सकते हैं नहीं वो लो मूव करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, ये एक सिंपल लैंग्वेज है, पर एक्चुअली इसके अंदर जो है पोटेशियम क्लोराइड और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट है सॉल्ट ब्रिज के अंदर उसके थ्रू मूव होता है, ठीक है। अदरवाइज आप पोटेशियम क्लोराइड डालने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट आप जा सकता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर विदाउट द हेल्प ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो आप सॉल्ट ब्रिज अगर डाल दो और उसमें ज्वाइन कर दो, और जहां जिंक होगा वो जिंक चला जाएगा, सल्फेट होगा सल्फेट चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम है विद्या? तो पोटेशियम क्लोराइड का रोल कहाँ रहा? तो मूवमेंट ऑफ द चार्जेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज थ्रू द पोटेशियम क्लोराइड और द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है सर। मतलब जिंक और कॉपर तो माइग्रेट नहीं होगा ना वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू? नहीं नहीं नहीं, they are migrating through the potassium chloride। आप ओवरऑल क्या लगेगा, जब आपका मान लो, देखो यहाँ पे मान लो आपका सिस्टम के अंदर ये जो है कंटिन्यूस होगा ना, क्योंकि ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड मान लो इधर डिमांड कर रहा है यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ जाएगा, और सोडियम यहाँ जाएगा। सो ये एक टाइम ही हो रहा, एक टाइम ही काम नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली हो रहा है। इसका मतलब you will find a continuous movement of chloride, continuous movement of potassium inside the system. So it will seems to see that your zinc is moving and sulfate is moving, ठीक है। So it is passing because there is a charge imbalance in both the side during the process। तो आप 1 मिनट में जिंक मान लो 2 जिंक आयनाइज हुआ, 3 मिनट में आपकी जिंक 4 हो गया, 5 हो गया, तो उस हिसाब से वो डिमांड बढ़ेगा, उसी हिसाब से चार्ज आपका मूवमेंट होते रहेंगे। तो ओवरऑल सिस्टम में क्या लगेगा, ओवरऑल सिस्टम में ये लगेगा कि चार्ज माइग्रेट हो रहा है इनसाइड द सिस्टम एंड देयरफॉर द सिस्टम वर्क्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द आयंस आर टेकन प्लेस इन द सिस्टम। तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे कि आपकी मूवमेंट ऑफ द आयंस हो रहा है सिस्टम के अंदर। क्लियर? हेलो सर। यस सर, सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं लगाएंगे तो भी चार्ज ट्रांसफर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो एक टाइम के बाद सर वो जो चार्जेस है जिंक का और कॉपर का, तो वो तो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो फिर बीच में उस समय जाएगा। विदाउट सॉल्ट ब्रिज का कह रहे हो या विद सॉल्ट ब्रिज का कह रहे हो आप?
कॉपर विदाउट सॉल्ट ब्रिज का कह रही हूँ। हाँ, विदाउट सॉल्ट ब्रिज का बताता हूँ आपको मैं बताता हूँ विदाउट सॉल्ट ब्रिज का। जैसे आप ये ले लो, आपने दोनों को एक मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दिया, यहाँ आपने लिख दिया जिंक सल्फेट, यहाँ आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, यहाँ आपका रॉड है, ठीक है, और यहाँ आपका रॉड है, ठीक है। अब ये कनेक्ट कर दिया आपने वोल्टमीटर में, व्हाट एवर द वैल्यूज, आपकी कॉपर है और यहाँ जिंक है, ठीक है। आप विदाउट, मैंने अभी सॉल्ट ब्रिज नहीं लिया, आर गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या होगा, यहाँ आपका जिंक जो है नीचे आएगा, कॉपर यहाँ से डिपॉजिट होगा, यहाँ पे इम्बैलेंस होगा। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, सेमीपावर में मेम्ब्रेन है और आयन मूव कर सकता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, जिंक ज्यादा बन रहा है, जिंक आपका आयन ज्यादा बन रहा है, और सल्फेट यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि कॉपर तो आयन जो है डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो आपका जिंक जो है यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा और सल्फेट यहाँ से आने की कोशिश करेगा। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे आपका मिक्स होगा। तो इसमें क्या होता है, देयर इज ऑलवेज ए there is a possibility that at this junction, इसी जंक्शन में एक प्रॉब्लम्स आ सकता है। प्रॉब्लम्स क्या आएगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की प्रॉब्लम, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब, हेलो, यस सर कॉपर आयंस भी तो प्रेजेंट है ही, मतलब बिल्कुल ही कंसंट्रेशन कम है लेकिन प्रेजेंट तो है वो। कॉपर आयन कहाँ पे, इसमें ना सर CuSO4 में। हाँ हाँ, तो कॉपर आयन तो धीरे धीरे कॉपर आयन जो है ना वो डिपॉजिट करता जाएगा ना इसके अंदर। देखो कॉपर तो आयन जो है वो कॉपर सॉलिड बनते जा रहा है ना प्रोसेस में। यस सर, ओके सर, यस सर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है, जिंक 2 प्लस आयन, जिंक आयन बनते जाएंगे, है ना, जिंक डिसॉल्व करते जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको आयन क्या होगा, सर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, हाँ मतलब जब तक आप देखो, जब तक आप दोनों को आयन मूव करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे तब तो आपको चलेगा नहीं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डालना पड़ेगा ना आपको, कैसे सेपरेट होगा दोनों का। यस, आप क्या पूछ रहे थे बताओ। हेलो सर जिंक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है? नहीं, वो तो देखो बेटा, आप बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो अलाउ नहीं कराएगा तो कंप्लीट कैसे होगा, ये चार्ज इम्बैलेंस को कैसे बैलेंस करोगे, कनेक्शन ही नहीं होगा ना। जब आपकी आयन की मोबिलिटी नहीं कराओगे तो आपका कैसे जो है सिस्टम के अंदर वो जो करंट पास होगा, करंट तो ये लेके जाना है तो पास तो कराना पड़ेगा ना आपको, आइदर थ्रू समथिंग। तो या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आपको जिंक अलाउ कराना पड़ेगा तभी तो मूव होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन कांटेक्ट में आने की वजह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की प्रॉब्लम जहां जनरेट होना शुरू होगा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको लेटर, ठीक है। सो दैट इज द अनदर प्रॉब्लम व्हिच वी विल बी फाइंडिंग। सो दैट्स व्हाई वी यूज सॉल्ट ब्रिज सो दैट this problem of the liquid junction potential can be eliminated. Clear? Hello? Yes sir. Yes sir. Okay, so let me talk about that. I will tell you everything in the liquid junction potential, क्या होता है, कैसे होगा, वो आपको सारे बताए जाएंगे। अभी तो एक मैंने कॉमन सिस्टम बताया है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किया है वो किस टाइप के इलेक्ट्रोड्स है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट द गैल्वेनिक सेल और डेनार सेल क्या होता है और दोनों को कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं। So now let me talk about the types of electrodes so that I can discuss this thing in the proper way. One is the metal ion electrode, इलेक्ट्रोड जो हमने कॉपर और जिंक वाला यूज किया है उसको कहते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड।
ठीक है, and second is the gas electrode is a one another type. Third is the metal insoluble salt, metal insoluble salt electrode, ठीक है, and fourth is redox electrode, okay. These are the common. We can also have one is metal amalgam is also there. Metal amalgam electrode is also there, that we can discuss it. Okay. Up now we can talk about the first one, the metal ion. Metal ion electrode. Okay. Now metal ion electrode में what we generally do is the metal rod dips into in its own ion solutions. ठीक है, it can act as cathode or anode depending on the condition, with which the electrode is attached. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रोड को। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं मेटल जिंक का, जैसे हमने अब जिंक रोड को लिया है, वैसे ही एक आपका इलेक्ट्रोड हो सकता है। नाउ दिस इज योर जिंक एंड जिंक सॉल्यूशन के अंदर ऐसे आपने क्या किया है, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जिंक मेटल जो है अपनी आयन का सॉल्यूशन में ही इसको डीप किया जाता है, ठीक है। नाउ इट कैन बिहेव एज अ कैथोड, इट कैन बिहेव एज एनोड, ये डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या है, कंडीशन मतलब उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाफ सेल वो किस टाइप का है, वो नोट हो सकता है। सो मान लो इफ it acts as a cathode, कैथोड की बिहेव करेंगे तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आपका रिड्यूस होगा। इफ इट इज एक्ट एज ए एनोड तो क्या होगा, लूज होगा, जिंक लूज इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो हमने जो अभी बात किया है वो आपका जिंक मेटल आयन इलेक्ट्रोड है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में यूज किया है। तो आपका कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज, हमने क्यों एनोड यूज किया है? हमने इसलिए एनोड यूज किया है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाफ सेल जो कॉपर है, कॉपर का पोटेंशियल ज्यादा था, इसलिए हमने उसको एनोड में लिया है और वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कैन टॉक अबाउट। नाउ
इस इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसे लिखा जाता है, ठीक है, वी जनरली राइट these terms कैथोड एंड एनोड को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर 1 कि हम लिखते हैं रिडक्शन में, तो हम ऐसा लिखते हैं, नाउ दिस शो द रिडक्शन, क्योंकि पॉजिटिव 2 से 0 में जा रहा है तो ये रिडक्शन है, इसका मतलब कैथोड है, कैथोड है, ठीक है। और नाउ सेमी पंप में मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो है ये वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरफेस है, दिस इज इंटरफेस। इंटरफेस मींस ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, तो ये लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो इंटरफेस बिटवीन द फेजेस, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है, राइट। सेकेंड पॉइंट, हम इसको ऑक्सीडेशन में लिखेंगे तो जिंक सॉलिड एंड जिंक आयन जो एक्वस में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, तो हम इसको मानेंगे कि ये एनोड में हो रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन हियर, इसमें भी हमारा ये इंटरफेस है, इंटरफेस बिटवीन द फेजेस, अलग अलग फेज को सेपरेट करने के लिए ये वर्टिकल लाइन यूज होता है। इज इट ओके? इज इट ओके? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा। या कहां से शुरू करूं? सर यही वाला मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। हाँ, मेटल मेटल आयन, मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे बनाया जाता है, मेटल रोड को मेटल अपनी आयन के सॉल्यूशन में डिप कर सकते हैं, ओके। whenever you are dipping metal rod into its own ion solution, it become metal ion electrode. This metal ion electrode के अंदर क्या होता है, ये जो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों की, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, यहाँ जिंक आयन है, तो ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। ये बहुत मतलब डिटेल में हम मतलब पढ़ सकते हैं, इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। द मोमेंट यू पुट द मेटल रॉड इनटू द मेटल आयन, दे एस्टैब्लिश अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, these electrode work as a metal electrode. Now they can behave as a cathode, they can behave as an anode, depending on the condition with which the electrode is attached. Electrode is attached means उसका एक हाफ सेल जो इसके साथ बनेगा, उसके साथ क्या रिलेशन है, उस हिसाब से वो आपका कैथोड होगा या एनोड होगा, डिसाइड करेंगे। नाउ बाई चांस उसको कैथोड में लेना है, तो कैथोड में होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक मेटल बनेंगे, और एनोड होंगे तो जिंक मेटल जो है लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मेटल से मेटल आयंस बनेंगे। नाउ इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं नोटेशन ऑफ द हाफ सेल की फॉर्म में। नोटेशन ऑफ द हाफ सेल में इसको ऐसा लिखा जाता है, जब आपका कैथोड की तरफ बिहेव करेंगे तो अपना गेन होगा, तो पॉजिटिव से मतलब जिंक पॉजिटिव +2 से जिंक 0 में जाएगा, उसके बीच में एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये शो करता है इंटरफेस को। इंटरफेस मींस दे सेपरेटेड बिटवीन द डिफरेंट फेजेस, दैट मींस ये एक्वस मीडियम में होगा, सॉल्यूशन फेज में होगा, तो इसको एक्वस है, इसको हम लेफ्ट में लिखेंगे और राइट में आपका सॉलिड लिखेंगे, तो दोनों का सॉल्यूशन फेज और सॉलिड फेज को इंटरफेस जो है वर्टिकल लाइन से डिफाइन होता है। दूसरा सेकंड पॉइंट में ये एनोड की तरह यूज होता है, तो हम लिखा जाता है जिंक 0 से लॉस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन बनता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक इंटरफेस डिफाइन करता है, सेपरेट करता है दोनों फेजेस को, सॉलिड से लिक्विड फेज को। So whenever you write in the
नॉर्मल नोटेशन ऑफ द हाफ सेल, हाफ सेल को हम ऐसा लिखा जाएगा, ये हम नोटेशन में आएंगे, सेल की नोटेशन कैसे लिखेंगे वो सब में आपको इसका काम आएगा, ठीक है। तो ये नोटेशन है, ऑक्सीडेशन की नोटेशन है, रिडक्शन की नोटेशन है, कैथोड की फॉर्म में है तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा, एनोड की फॉर्म में है तब भी ऐसा लिखा जाएगा। सर हाफ सेल क्या होता है वो समझा दीजिए ना। Basically half cell is nothing but the cell. Half cell is also what we generally talk about the metal ion. ये इलेक्ट्रोड जो है ना वो भी है। Half cell consists of the dynamic equilibrium between metal or its constituents. जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया है मेटल और मेटल की बीच में, मेटल आयन की बीच में डायनामिक रिलेशन डेवलप होता है। So whenever you are talking about half cell can of a different type. Like इससे आपका redox electrode है, redox half cell है, और half cell is nothing but a half of the your cell. Half of your cell means your electrode, because electrodes are developed by two electrodes or two half cell. Are you getting my point? So when we define half cell is nothing but half of the cell of your system. Okay. So now half cell may be of metal ion electrode, half cell may be of the gas electrode, half cell may be of the metal insoluble salt electrode, half cell may be the redox electrode, or half cell may be the metal amalgam electrodes. Clear? Are you getting my point? Yes, sir. Yeah. So I hope for today your time is already मेरे ख्याल से 11:30 तक था, तो अभी तक आज का जो डिस्कशन है इसमें कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ लो, फिर हम आगे डिस्कशन होंगे इसमें हाउ टू मेक इट एंड हाउ टू डेवलप, और सेल कैलकुलेशन कैसा होगा, सेल पोटेंशियल कैसे डेवलप होंगे। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने मार्क्स की आती है नेट के एग्जाम में? यस सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने मार्क्स की आती है एग्जाम में नेट के एग्जाम? जनरली मैंने अभी तक जो देखा है क्वेश्चन जो है 5 से 6 क्वेश्चन आता है, वो आपका कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपकी ए सेक्शन में आता है, और 1-2 क्वेश्चन आपकी जो है सी सेक्शन वगैरह में आता है। सो इट मे हैव अ नंबर ऑफ 4 मार्क्स और 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, डिपेंड ऑन दैट। तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो उसमें आएंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और 3-4 क्वेश्चन और होंगे वो कंडक्टेंस से आएंगे। सो ओवरऑल आपका जो है 5 से 10 क्वेश्चन मान के चलो, डिपेंडिंग ऑन ईयर टू ईयर। ठीक है सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़कर आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे? आई विल ओनली टीच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर कितनी क्लासेस लगेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने में? डिपेंड करता है, 2 आवर्स की क्लास होगा तो लगभग 25 से 30 क्लासेस होंगे, और 1.5 क्लास के होंगे लगभग 30 to 35 क्लासेस। ओके सर। Yes. Any other questions on the discussion? Sir, which book would you prefer for electrochemistry? बेसिक जो है आप एटकिंस वगैरह पढ़ सकते हैं, एक बुक्स है बट दैट इज इंग्लिश ऑथर, ग्लैस्टन है, द इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ग्लैस्टन करके बुक आता है। सर पुरी शर्मा पठानिया कैसा है? पुरी शर्मा पठानिया इज अ वेरी बेसिक बुक, आपको पढ़ने में आसान होगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? हाँ, डेफिनेटली यू कैन यूज पठानिया वाला भी ले सकते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है, सो यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। ओके सर। सर आप हमें प्रीवियस ईयर के अलावा भी क्वेश्चंस देंगे? या बिल्कुल देंगे। ओके सर। हेलो सर। क्वेश्चन के साथ साथ अभी आपकी जो थ्योरी के साथ साथ अगले क्लास से थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कराते जाएंगे। हेलो सर। हेलो।
Okay, sir. Hello, sir. Sir? Hello? Hello, sir? Hello, sir. Hello. जो पास ईयर क्वेश्चन, यस Hello, sir. Am I audible to हेलो, you? यस यस यस, audible. Sir, I want to know कि with the help of salt bridge, can we say that the overall concentration of copper sulfate is decreasing and zinc sulfate is increasing? copper sulfate is increasing. No, sir, concentration of copper sulfate is decreasing because copper 2 positive ions are decreasing and also sulfate ions are decreasing by reacting with potassium ions. So can we say that its concentration is overall decreasing? ऐसा जनरली कहता नहीं है कि एक साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, एक साइड की कंसंट्रेशन कम हो गया। हाँ, ओवरऑल जब देखेंगे आप कॉपर, देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉपर डिपोजिशन हो गया है तो एक कहीं ना कहीं एनायन की डिक्रीज, एनायन की कंसंट्रेशन हुआ वो ज्यादा हो रहा है, जैसे राइट हैंड साइड में हमने देखा, और लेफ्ट हैंड साइड में जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, चार्ज इम्बैलेंस हो रहा है, बट चार्ज इम्बैलेंस आर कंट्रोल्ड बाय द सॉल्ट ब्रिज। नाउ अब ये नहीं कह सकता कि एक साइड में इंक्रीज हो रहा है एक साइड में डिक्रीज हो रहा है। Okay, as sir. long as charge balance is there, your electrode will be, cell will be function. आप इसमें charge imbalance जैसे हो गया, system will not work. ठीक है? Yes, sir. And also, sir, I didn't understand कि without salt bridge, isn't circuit is completed because electrons are already moving. Yeah. Basically जब आपका without salt bridge, you can do the system, you can run the system, but वहां पे मैंने आपको ये कहा है ना कि different concentrations आप लेंगे तो वहां पे आपका liquid junction potential की problems आएगा। लिक्विड जंक्शन की प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे ही जंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जब मिक्स होता है तो क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव होने की चांसेस रहता है। तो व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मूविंग साइड टू साइड, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इनसाइड द सॉल्यूशन जनरेट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, सो दैट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल विल add to the potential of the cell. So that is the error potential which are adding to the cell. So that's why we try to remove the liquid junction potential. That's why we use salt bridge. Okay? No, sir, in the same system I'm talking about is if there is not any liquid junction and also not any salt bridge, then circuit is not completed. Because circuit is completed only by moving of electrons, like current can be generated by the movement of electrons. So what's the need of salt bridge to complete the circuit? That's why I'm telling you ना, can you see my screen? Yes, sir. आप देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, आप इस ड्राइंग में मान लो मैं इस मेम्ब्रेन को हटा देता हूँ, yes, sir. मेम्ब्रेन को मैं हटा दूं तो आपके ये इलेक्ट्रोड जो है मेटल आयन इलेक्ट्रोड वर्क करेगा, क्योंकि ये तो आपने मिक्स कर दिया। No, sir. तो फिर तब दोनों विदाउट सम मेम्ब्रेन यू कैन नॉट यूज इट। ये दोनों ऐसा मिक्स नहीं कर सकते ना। Not in individual beakers, sir. इंडिविजुअल बीकर? Yes, sir. ओके, लेट अस सी इंडिविजुअल बीकर। हमने अलग अलग कर दिया। अब बताओ यहाँ कैसे कनेक्ट करेंगे? How the ion will move from one side to another side? चार्ज इम्बैलेंस को कैसे बैलेंस करोगे? If there is a charge imbalance, you will stop there is no electron to flow. देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो करंट भी मूव होता है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो करंट रिवर्स फ्लो में मूव करते हैं। Yes, sir. ठीक है, करंट जो है वो रिवर्स में मूव करेगा, जैसे करंट यहाँ से आ रहा है। अब करंट मूव करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो कैसे होगा? ओके सर, मतलब बिना चार्ज बैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ही नहीं। हाँ, ऐसा है ना। इलेक्ट्रॉन का मूव का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ करंट।
इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसका मतलब सर्किट पूरा होना चाहिए ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक करंट पास होगा। ये करंट कौन मूव करेगा सॉल्यूशन में? ये आयंस मूव करता है। नीचे का सॉल्यूशन के अंदर, नीचे का सॉल्यूशन के अंदर आयन मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, आयन मूवमेंट टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तभी तो सर्किट बनेगा, तभी तो सर्किट बनेगा, तभी तो आपकी करंट जनरेट होता जाएगा, आपकी जो है कन्वर्जन होता जाएगा। सो सर्किट नीड टू बी कंप्लीटेड। विदाउट द सर्किट कंप्लीट यू कैन नॉट फाइंड एनी करंट फ्लो। सर लेड एसिड बैटरी में तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होता है ना सर? इसमें लेड एसिड बैटरी आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, दोबारा बोलेंगे? हेलो सर, जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं ना लीड एसिड। यस सर, हाँ। लेड एसिड जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं ना, उसमें तो नहीं होता है ना लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। हाँ हाँ, उसमें बैटरी में क्या होता है, बैटरी में पॉजिटिव एक साइड में होगा ऐसा, नेगेटिव एक साइड में होगा, और अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे इसका। आपने कभी देखा है गाड़ी का? आपके उसमें देखा कि नहीं देखा? जी सर, जी सर। हाँ, एक नेगेटिव एक साइड में होगा, पॉजिटिव एक साइड में होगा, और यहाँ सेपरेशन है दोनों के बीच में। ठीक है, सो इसमें आपका जो भी सोल ब्रिज होगा या कनेक्टिविटी होगा, देयर विल बी देयर, बट दिस आर द कनेक्शन। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है। सो सेल आर कनेक्टेड इन द सीरीज, दैट्स व्हाई यू गेट द बैटरीज। बैटरी इज नथिंग बट द सीरीज ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा, मतलब इसमें मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं होता है ना सर, डायरेक्ट चार्ज फ्लो होता है? नहीं, वो देखो, वो तो अलग अलग बैटरी की स्टाइल है, अलग अलग बना सकता है, बट देयर इज ऑलवेज बी सेल। जब सेल होंगे तो आप आइदर यू कैन मेक अ सेल। आपके पास देखो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, यहाँ रिचार्जेबल सेल्स है, नॉन रिचार्जेबल सेल है। तो एक होता है एक ही सॉल्यूशन में, सेम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड यूज करके भी सेल बनता है ना? जी सर, जी सर। तो उस टाइप के सेल ले सकता है जहां आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, है ना? इस टाइप के सेल भी है, राइट? तो हम जो गल्वेनिक सेल की बात करें, गल्वेनिक सेल में आपको कहीं ना कहीं आपको सोल ब्रिज यूज करना पड़ेगा टू कनेक्ट दिस सिस्टम। ठीक है, मतलब सर गैल्वेनिक सेल में सॉल्यूशन दो टाइप के होना चाहिए। क्योंकि गल्वेनिक सेल बनेगा ही दो टाइप की इलेक्ट्रोड से बनेगा ना, अदरवाइज एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होगा? सेम टाइप ही कर सकते हैं, बट डिफरेंट कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज देयर पोटेंशियल नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। देखो यहाँ पे जो है दो चीजें होता है। एक्सपोनेंशियल रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ड्राइविंग फोर्स इज नथिंग बट द रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होगा? एक लूज होगा, एक गेन होगा। तो जनरली टू डिफरेंट हाफ सेल विल बी यूज, सेम हाफ सेल नहीं कर सकते। सेम हाफ सेल में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, देन देयर इज नो करंट फ्लो। यस, अच्छा, ओके, जी सर, जी सर। हेलो सर। यस सर, जो ये डैनियल सेल है, इसका जो फंडा है, ये इंडस्ट्रियल ब्रीफ में इंडस्ट्रियल यूजफुल है? बेसिकली बेटा आपका जो है ना डैनियल सेल, अभी रेडियो चलाते हो कभी कभार? नहीं सर। अभी तो जैसे जनरली हम लोग सब डेवलप हो गए, मॉडर्न हो गया, बट एक जमाने में हम रेडियो चलाते हैं। रेडियो चलाते हैं तो एक सेल आता है, बड़ा मोटा मोटा सेल आता है, क्योंकि अभी हाँ सर, वो देख रखा है, देख रखा है। वो सेल डैनियल सेल है, वो सेल ड्राई सेल है। ड्राई सेल जो कह रहे हैं ना, वो डैनियल सेल है। वो एग्जैक्टली इंडस्ट्री क्या अभी भी बना रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, पीपल आर यूजिंग। सर नहीं, ये कह रहा हूँ जैसे जिंक से कॉपर की रोड है तो ये हैवी होती जा रही है, तो ऐसे कॉपर की रोड बना दें तो? हाँ, आजकल मतलब आजकल देखो, आजकल क्या हो गया, आजकल तो निकल कैडमियम बैटरीज आ गए, आजकल लिथियम आयन बैटरी है। आप अभी जो यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन में, वो लिथियम आयन बैटरीज हैं। ठीक है, जी तो सर, आजकल तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो लाइटर है। नाउ मोस्ट लाइटेस्ट सेल इज द बैटरी इज नथिंग बट लिथियम आयन बैटरीज, जो आज की डेट में मोबाइल में डाला हुआ है। तो yes, people are changing from one context to another context. एक जमाने में जिंक कॉपर के ड्राई सेल को ही यूज करते थे,
रेडियो चलाना, कहीं भी चीज चलाना। नाउ पीपल हैव डेवलप। सबसे पहले क्या हुआ, निकल कैडमियम बैटरी यूज होता था। आपको पता है कि नहीं पता है, इंडिया में 2002 के अराउंड जब मोबाइल आया तो मोबाइल सबसे पहला मोबाइल निकल कैडमियम बैटरी था, कुछ बड़ा हेवी होता था, और दूसरा वो फ्लेम मतलब आग लग सकता था बहुत जल्दी। तो इसके बाद people have changed to lithium ion battery. Now people are easily use lithium ion batteries, and light भी है, लाइट वेट भी है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। मतलब सर आपने जो बोले ना, जो रेडियम में हम लोग बैटरी यूज करते हैं उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है ना सर? हाँ देखो, अप्लाई सोल्यूशन फॉर्म में नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये जो फंडामेंटल है ना, ये फंडामेंटल अप्लाई होता है। बट जब नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अलग अलग टाइप की मोड ऑफ ऑपरेशन आता है, फंडामेंटल आइडिया ये होगा। फंडामेंटल चीज में कोई चेंज नहीं कर सकता, बट हम क्या करते हैं, हम उसमें जो है जब बनाते वक्त उसकी डिजाइन चेंज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो, अभी जो माइक्रो फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट जिसे यूज हो रहा है, वहां पे फ्रूट चेंज करा रहा है, ड्राई लगता है आपको, अंदर से वो वेट होता है। तो आजकल अलग अलग टाइप की जो है ना टेक्नोलॉजी आ गया है। जैसे हम पहले क्या होता है, सोल्यूशन बनाते थे, आज सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। आजकल जो है स्वैप में डिप करके जो है वेट कर देते हैं, फिर उसकी सेल के अंदर डाल देते हैं, वो सालों साल चलता है। सो न्यू टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड न्यू कॉन्सेप्ट, बट दे आर conceptually they are same in the concept, मतलब conceptually same है। ठीक है, जी सर, जी सर। ओके, एनी अदर डाउट? हेलो सर। यस सर, जैसे हम गैल्वेनिक सेल में एनोड को नेगेटिव लेते हैं और जैसे इलेक्ट्रोलिसिस सेल में पॉजिटिव लेते हैं, सर ऐसा क्यों? यस, वो बेसिकली कनेक्टिविटी के ऊपर है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एनोड को, कैथोड को हम नेगेटिव से टर्मिनल से जो कनेक्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? यस सर। मैं आपको लिख देता हूं क्या होता है। जैसे आपके पास नेगेटिव है, पॉजिटिव, ऐसे लिखा जाता है। नेगेटिव ये भी आप बताऊंगा। स्मॉल लाइन जो है उसको नेगेटिव कहते हैं, बड़ा लाइन को हम पॉजिटिव बोलते हैं। ये बैटरी है, इसको हम कहते हैं बैटरी का लिखने का एक नोटेशन है, ये बैटरी। यस सर। यहाँ कनेक्ट करेंगे, और ये आपने एक सेल कंपार्टमेंट दे, सपोज सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन है, या प्लाटिनम डिप कर रहे हैं, यहाँ पे प्लाटिनम डाल रहे हैं। मैं रब लिख रहा हूँ, ये आपका प्लाटिनम है, या आपका प्लाटिनम है।